Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we will discuss a story named The Sermon at Banaras, written by Betty J. Ransom from class 10's book First Flight. Here the sermon means Updesh, a speech on religious or moral subjects that is given as a part of a service in church. So the sermon at Banaras is a story about Gautam Buddha. And one fine day, when he was going for hunting, he caught sight of a sick man, an aged man, a dead man's funeral procession, and a monk. Seeing this, he realized that this world is full of sufferings, sorrow, grief. So he left home in search of wisdom at the age of 25 and wandered for around 7 years and got enlightenment ultimately. So let us start reading this story. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है और 583 BC में उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के नाम से नॉर्दर्न इंडिया में की। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया गया, विद्यालय में भेज दिया गया और तकरीबन 4 वर्षों के बाद जब वो वापस लौटे तो वापसी का कारण एक राजकुमारी से शादी करना था। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। उनका एक पुत्र भी था और 10 सालों तक राजसी अंदाज में उन्होंने अपने राज्य में राज्य किया। At about the age of 25, the princess, from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. So, though he was living like a prince, and at the age of about 25, he was not aware about the sufferings of the world. And one fine day, when he went out for hunting, he caught sight of a sick man's, then an aged man, then a funeral procession, finally a monk who was begging for alms. तब उनको ये रियलाइज हुआ कि दुनिया जो है कितनी दुखों से भरी हुई है। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. और इन सारे दृश्यों को देखने के बाद वो इस कदर दुखी हुए, इस कदर आहत हुए कि वो घर छोड़कर एनलाइटमेंट की खोज में कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है, इसकी खोज में वो घर से बाहर निकल गए और तकरीबन 7 सालों तक इधर उधर घूमने के बाद फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, जब तक एनलाइटमेंट उनको नहीं मिलेगा, तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom. और एक बार जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तकरीबन 7 दिनों के बाद, तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि ट्री यानी कि बोधि वृक्ष रखा, द ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उसी दिन से उनको जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको दूसरों के साथ साझा करना और दूसरों को समझाने का प्रयत्न
शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम known as the Buddha, the awakened or the enlightened। और उसी समय से उनको बुद्धा के तौर पे जाना जाने लगा। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the tipping place on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of sufferings। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस जैसे पवित्र शहर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वहाँ पे दिया, और इस उपदेश को प्रिजर्व करके रखा गया है और इसको यहीं पे छापा भी गया। यह जो उपदेश है वो दुखों के न समझ में आने वाले विभिन्न कारणों को बताता है, समझाता है। Isa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicines. And the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." किसा गौतमी एकमात्र उनका बेटा था जो कि मर चुका था, और दुख में उस मरे हुए बेटे को हाथ में लेकर वो अपने पड़ोसियों के यहाँ जाती और उपचार की मांग करती। लोग देखते कि बच्चा तो मर चुका है, तो कहते कि संभवतः ये अपने बच्चे के मरने के दुख के कारण अपने बुद्धि विवेक को खो चुकी है, पागल हो चुकी है, बच्चा तो मर चुका है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." किसा गौतमी इस तरीके से घूमते घूमते एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो कि उसे जवाब देता है कि उसे वो मेडिसिन तो नहीं दे सकता, दवाइयाँ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक ऐसे फिजिशियन के बारे में जानता है जो कि इसका उपचार कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, "प्रे टेल मी सर, हु इज इट?" तो जो लड़की है जिसका कि पुत्र मर चुका है वो कहता है कि कृपया मुझे बताएं कि वो व्यक्ति कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, "गो टू साक्य मुनि द बुद्धा।" तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें साक्य मुनि, जिनको कि बुद्धा कहा जाता है, उनके पास जाना होगा। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." किसा गौतमी भागते हुए बुद्धा के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि लॉर्ड, ओ मास्टर, मेरे पुत्र को ठीक कर देने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ उपचार बताएं। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend." तो जवाब में बुद्धा कहते हैं कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। और जब महिला ऐसा सुनती है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, उसको लगता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, और कहती है कि वो ज़रूर ही मुट्ठी भर सरसों लेके आएगी। तो जब वो सरसों लाने के लिए राजी होती है तो बुद्धा कहते हैं कि वो सरसों तुम्हें ऐसे ही घर से लाना है जहाँ पे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हो, किसी के हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुई हो, किसी के माता पिता, किसी के मित्र की मृत्यु नहीं हुई हो। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" They answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. But do not remind us for our deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died in it. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the light regained everywhere,
and she considered the fate of men, that their lives flickers up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है और मस्टर्ड सीड्स मांगती है। लोग उस पर दया दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मस्टर्ड सीड्स ले लो, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या उनके यहाँ किसी बेटे की, किसी बेटी की, पिता की, माता की या किसी भी ऐसे फैमिली मेम्बर की क्या डेथ हुई है, तो उनका जवाब होता है कि मरने वालों की संख्या जीवित व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा है और कृपा करके वो उन्हें उनके दुख के बारे में याद न दिलाएं। और ऐसा कोई भी घर किसा गौतमी को नहीं मिलता है जहाँ पे किसी न किसी की डेथ न हुई हो। और इस तरीके से किसा गौतमी जो है बहुत ज़्यादा दुखी होती है और असहाय होकर एक जगह बैठ जाती है रास्ते पर ही। शहर में जो लाइट्स हैं उनको देखती है कि वो किस प्रकार जल उठती हैं और फिर बुझ जाती हैं, और एट लास्ट रात का जो अंधेरा है चारों तरफ फैल जाता है। और जब उसने इंसानों के फेट के बारे में सोचा या सोचना शुरू किया तो जीवन के दर्शन के बारे में उसे पता चला। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी है। जिस प्रकार शहर की रोशनी जलती है फिर बुझ जाती है और चारों तरफ अंधकार फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन जलता है और मृत्यु के साथ ही वो बुझ जाता है। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मृत्यु जो है सबके लिए समान है और यही एकमात्र ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जो कि मनुष्य को अमरता की तरफ ले जाता है और जो भी स्वार्थ सिद्धियां हैं उसको समाप्त कर देता है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्धा फिर उसको कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो मुसीबतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से भरा हुआ है और बहुत ही संक्षिप्त है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है, तरीका नहीं है जिससे कि जो जन्मा है उसको मृत्यु से बचाया जा सके। After reaching old age there is death. ओल्ड एज आने के बाद मृत्यु हर एक व्यक्ति की, हर एक प्राणी की निश्चित है। Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जिस प्रकार एक पके हुए फल के नीचे गिर जाने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा होती है, उसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, उनको मरना ही मरना है एक दिन। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fool and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. तो जिस प्रकार एक पॉटर जो है अपने बर्तनों को बनाता है और वो मिट्टी के बर्तन, उनका अंत एक बार जरूर होता है और किस प्रकार होता है जब वो टूट जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी मॉर्टल्स हैं, जो भी प्राणी हैं जिनके अंदर जीवन है, उनकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, सभी की मृत्यु जो है निश्चित है और उसे मृत्यु के सामने झुकना ही होता है।